अब शिमला डेपुटेशन के बाद, because Shimla deputation was the first political activity, it was such a success that Muslims got the guarantees from the British that they would not reverse the partition of Bengal, and secondly, separate electorate, the topmost demand of the Muslims, was granted to them. They were on high, in seventh heaven, and now they started thinking seriously that first political activity was so successful because the relationship had got better, how they would create their own political party for the continuous political struggle. And then the same year, 1906, when Shimla deputation went, in December, the last dates of December 1906, there was going on an annual session of Mohammedan Educational Conference. And you remember very well that Mohammedan Educational Conference was set up by Sir Syed Ahmad Khan as a counterweight to Congress in 1886, when he stopped the Muslims from participating in Congress politics, and in order to satisfy the Muslim desire of political discussion, he created that platform where the Muslims could come. Not only they could keep themselves abreast with the modern education policies, but also they could satisfy their political desire. That Mohammedan Educational Conference, most of the participants were also included into that 35-member delegation which went to Shimla to meet Lord Manto. So there was going on that a conference when Muslim League, Muslim political party, All India Muslim League, that was launched, and there it was formed. Nawab of Bengal, Sir Aga Khan, and Mohsin al-Mulk, secretary of Aligarh College, both of them, they were the founding fathers of Muslim League. And at that time, I mean 1906, one thing remember, that was the same year when Quaid-e-Azam as a young man joined Congress, I mean joined politics, but he did not join Muslim League. Muslim League was created now. And what were the major reasons of Muslim League? There were some declared reasons. They gave their manifesto. They told the people what were the apparent reasons for Muslim League formation. Number one, to safeguard Muslim rights. That was one thing obvious. The second, to inculcate loyalty amongst the Muslims for the British. That was the same objective which was Aligarh's. And then to create communal harmony. I mean, all the communities living in India, such as Hindus, Muslims, Sikhs, there was a sense of, I mean, to create a sense of harmony amongst them. That was the third one. And the fourth one, which was the fourth one was to narrow down the communicational bridge between the Muslims and the rulers, which means Muslim demands should be conveyed to the British rulers through this party. So these were the declared reasons described by the founding fathers. But there were some underlying reasons, and those underlying reasons were emergence of elite Muslim educated class. Emergence of elite Muslim educated class. What does it mean? That the British or Aligarh had asked the Muslims to concentrate on education and not on politics, and now there was emergence of that one class which was highly educated, and they could come into politics and they could compete the Hindus in politics or on constitutional platforms. Then success of first political activity, which was called Shimla deputation, this encouraged them. Then relations with the rulers were exemplary at that time, so it was ripe time to found their own political party, because you know, when Sir Syed Ahmad Khan asked Muslims not to come into politics, that time the relations with the British were not a happier one. The British were not comfortable with the Muslims coming into politics because they feared Muslims were trouble maker. And to counterweight Congress, which had become dominated, Hindu dominated, as per Sir Syed Ahmad Khan's prophecy. So Sir Syed Ahmad Khan's every prophecy was coming true by now.
So to benefit from separate electorate, that is another reason. I mean, separate electorate had been granted, and now Muslim League, it was created not to give that benefit to the Congress as well. I mean, what could Congress do? Congress could field Muslims on Muslim electorate and Hindus on Hindu electorate, and thus could get benefit from it. But Muslim League needed to field its own candidates in order to show that Muslim interests were quite different, and only Muslim League leaders could pursue those interests and not Congress Muslim leaders could pursue. Significance: this protected Muslim rights effectively. I mean, separate electorate, and then there was another right of the Muslims, that was provincial autonomy, and then community minority weightage. I mean, these were some of the rights which Muslim League fought very well, and they ensured their grant in constitution. So 1940 onwards, Muslim League also ran Pakistan movement to its success. मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट इवेंट आता है वो है मौले मंटो रिफॉर्म्स. एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ द स्टेट, रिफॉर्म्स एक ही चीज़ है. एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सेट ऑफ लॉज, स्टेट के लॉज. रिफॉर्म्स इसलिए इनको कहते हैं कि हमेशा लॉज बेहतरी के लिए आती हैं, कवानीन लोगों की रिफॉर्मेशन के लिए बनाई जाती हैं, इसीलिए इनको रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. अब ब्रिटिश में जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था जो इंडिया के बारे में, उसमें कुछ चेन ऑफ कमांड किस तरीके से थी. वाइसराय जो हिंदुस्तान में ऑल इन ऑल होता था, वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो कि लंदन में एक इंडिया हाउस था, यानी एक स्प्रॉलिंग सेक्रेटेरिएट था जहाँ पर इंडिया के मुतल्लिक बहुत सारे मैटर्स को देखा जाता था. बहुत सारे क्लर्क्स की फ़ौज, सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज वहाँ बैठे होते थे. तो उसका हेड था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. तो वाइसराय रिस्पॉन्सिबल था, आंसरेबल था उस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के लिए जो इस वक्त जिनका नाम मॉर्ले था, जॉन मॉर्ले. और ये सेक्रेटरी कैबिनेट का हिस्सा भी होता था, यानी पार्लियामेंट का हिस्सा भी होता था. तो ये आंसरेबल था प्राइम मिनिस्टर को या पार्लियामेंट को. अब प्राइम मिनिस्टर भी पार्लियामेंट को आंसरेबल होता है. और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट किसको आंसरेबल थी, किंग या क्वीन को. तो ये एक चेन ऑफ कमांड थी हिंदुस्तान के ऊपर रूल करने के लिए. सबसे टॉप पर किंग, फिर प्राइम मिनिस्टर या उसकी कैबिनेट, उसके नीचे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से नीचे वाइसराय या गवर्नर जनरल जो हिंदुस्तान में होता था. वो हमेशा सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से पूछ के चलता था, मगर बहुत सारे मामलों पर चूँकि वो हिंदुस्तान में बैठा हुआ था तो उसको इख्तियार था ऑल इन ऑल फैसले करने का. तो ये दो मिल के रिफॉर्म्स बनाते थे, लॉस बनाते थे हिंदुस्तान के लिए, एक वाइसराय और एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. इस वक्त वाइसराय का नाम था मंटो और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का नाम था मॉर्ले. तो इन दोनों ने मिल के रिफॉर्म्स एक पैकेज बनाया और बनाकर तो पार्लियामेंट को पेश किया, और पार्लियामेंट ने उसके ऊपर डिस्कशन की. डिस्कशन करने के बाद पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, उसके ऊपर फिर वोटिंग करती थी, और वोटिंग के ज़रिए से वो पास हो जाता था तो फिर पार्लियामेंट से पास होने के बाद वो जाता था क्वीन या किंग के पास, और वो उसके ऊपर साइन करते थे, तो वो लॉ बन जाता था जो इंडिया के ऊपर इम्प्लीमेंट होता था. इंडिया का लॉ ब्रिटिश की पार्लियामेंट में मंजूर होके तो इंडिया पे लागू होता था. इंडिया की कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं थी जहाँ से लॉज बनते, क्योंकि इंडिया वाज अ कॉलोनी, अ सॉर्ट ऑफ ए प्रोविंस ऑफ ब्रिटेन. तो ये तो आपको समझ लगी. इसीलिए इसको 1909 के एक्ट को हम इसको क्या बोलेंगे, 1909 का एक्ट, इसको हम मॉर्ले मंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं. तो 1909 का एक्ट इम्पॉर्टेंट दो हवालों से है, आपने उसको याद रखना है. सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो हमारे पाकिस्तान में मेजर क्वेश्चंस आती हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट की हैं. उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो हैं उनको दिया, यानी परमानेंट लॉ बना. सेपरेट इलेक्टोरेट को शिमला डेपुटेशन में ग्रांट कर दिया गया था, लेकिन वो परमानेंट लॉ नहीं था. वो वाइसराय ने वैसे ही
एक ऑर्डर के ज़रिए से ग्रांट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, मगर परमानेंट लॉ उस वक्त तक नहीं बनता जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बन जाता। तो सेपरेट इलेक्टोरेट बिकेम द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस मीन्स नाउ इट वाज अ परमानेंट स्टेट लॉ ऑफ इंडिया, सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा आपने लिखना है अपने पाकिस्तान के जो एग्जामिनेशन है उसमें। और दूसरी जो इसमें अहम बात थी वो थी एक्सटेंशन ऑफ काउंसिल्स। जो प्रोविंसेस में काउंसिल्स थीं उनको एक्सटेंड किया गया। अब काउंसिल्स से मुराद आप थोड़ा सा ये लें, जैसे काउंसिल्स आज असम्बलीज़ हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज़, उस वक्त उनको काउंसिल्स कहते थे क्योंकि वो काउंसलिंग करती थी, वो मशवरा करती थीं और मशवरा दे सकती थी ब्रिटेन को, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं था उनका मशवरा। लेकिन आज तो असम्बलीज लॉ दे सकती हैं और लॉ बाइंडिंग होता है। तो उस वक्त काउंसिल्स 1861 में काउंसिल्स बनाई गई थी एक एक्ट के ज़रिए से, जिसको कहते हैं 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट। और उसमें कहा गया था हर प्रोविंस में ये काउंसिल होगी। उसमें कहा गया था कि बहुत सारे लोग डायरेक्टली सेलेक्ट भी होंगे जो ब्रिटिश सेलेक्ट करेंगे, और कुछ इंडियंस को इलेक्ट भी किया जाएगा इलेक्शंस के ज़रिए से। अभी तक इन काउंसिल्स में सिर्फ हिंदूज ही ज़्यादातर इलेक्ट होके आ रहे थे, क्योंकि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया था 1906 के बाद। जब सेपरेट इलेक्टोरेट उनको मिला 1906 के में, तो उसके बाद फिर वो भी इलेक्ट होने उसमें स्टार्ट हो गए थे। तो इनको एक्सटेंड किया जाएगा। मोर इंडियंस would now be elected to the Indian councils. More seats were given to it, which was the demand of Congress, and then afterwards they were given little more powers. वो कौन सी थी? इन काउंसिल्स में अब बजट के ऊपर बहस भी कर सकेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि बजट के ऊपर इंडियंस बहस कर सकेंगे और रेजोल्यूशंस पास कर सकेंगे और बहुत सारे मैटर्स के ऊपर, बट दीज रेजोल्यूशंस वुड नॉट बी बाइंडिंग अपॉन द ब्रिटिश। ब्रिटिश ऑल इन ऑल थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में सारी पावर्स ब्रिटिश के पास थीं। तो आप समझ लें कि ये काउंसिल्स जस्ट वर द टॉकिंग शॉप्स। ये बनाई क्यों गई थी काउंसिल्स? आपको पता है सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसी काउंसिल्स होनी चाहिए जहाँ पे इंडियंस आएँ और अपने ग्रीवेंसेस को शेयर कर सकें, ताकि बात ब्रिटिश तक पहुँचे और एक कम्युनिकेशनल गैप ख़त्म हो। ब्रिटिश जो है प्रीएम्प्टिव एक्शंस लें और 1857 जैसी सिचुएशन से पहले ही उनको पता चल जाए कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रीवेंसेस वर गोइंग ऑन इन इंडिया। तो ये काउंसिल्स इसलिए 1861 में बनाई गई थीं। तो अब हम आते हैं इसकी तरफ। मौले मंटो रिफॉर्म्स में अगर आपने लिखना है सेपरेट इलेक्टोरेट, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ये मुस्लिम सक्सेस थी, इसके बारे में बता चुका हूँ। इफेक्ट ऑफ शिमला डेपुटेशन था, शिमला डेपुटेशन में इसकी डिमांड की गई और इसमें इसको परमानेंट लॉ बना दिया गया। ब्रिटिश टैसिटली अग्री, टैसिटली का मतलब है अंदर ही अंदर, they agreed that separation lay at political level between Muslims and Hindus. That was very significant because the British had accepted tacitly that there was a separation. Hindus and Muslims were politically different nations, and that became the basis of Pakistan movement later on, that separation, the concept of separation, it became ideology of Pakistan. So it was also the success of Sir Syed Ahmad Khan. We know very well he was the first one to negate Western style democracy. He used to say Western style democracy is a poison to Indian heterogeneous society, because Western style democracy, where was a joint electorate, was good for Britain and other European countries because there were only homogeneous people living there, only one culture resided. But in India different cultures are there, and here Western style democracy meant हिंदू डोमिनेशन या डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटीज़। तो इस तरीके से ही डिमांडेड ऑफ अ सूटेबल डेमोक्रेसी टू इंडिया, एंड द आंसर टू दैट सूटेबल डेमोक्रेसी वाज सेपरेट इलेक्टोरेट। देन फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पाकिस्तान, आप इसको कह सकते हैं। आप पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। आप और भी जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको फर्स्ट स्टेप ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं, क्योंकि हर स्टेप ने कंट्रीब्यूट किया टू पाकिस्तान। आप देख सकते हैं इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को मान जाना, ये पाकिस्तान की तरफ कदम था एक बहुत बड़ा। आगे एक्सटेंशन ऑफ काउंसिल्स, 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट गेव इंडियंस द राइट ऑफ इलेक्शन टू काउंसिल्स। और इंडियंस की बहुत देर से डिमांड थी कि इन काउंसिल्स को वसी किया जाए और इजाज़त दी जाए कि ज़्यादा इंडियंस इलेक्ट होके आए, सेलेक्ट होके कम इंडियंस आए।
तो इसलिए फिर 1892 में एक और एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। उस एक्ट में इनको कुछ एक्सटेंशन दी गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं दी गई थी इन काउंसिल्स को। इंडियंस खुश नहीं थे, ख़ासतौर पे कांग्रेस मूवमेंट चला रही थी कि इन काउंसिल्स को एम्पावर किया जाए, इनको ज़्यादा पावर्स दी जाए। और अब इसमें मौले-मंटो रिफॉर्म्स में, जिसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी बोलते हैं 1909, उसमें अब इनको थोड़ी सी और पावर्स दी गई, लेकिन ये इंतहाई लिमिटेड थी। इंतहाई लिमिटेड पावर्स व गिवन टू इट, जैसे किस तरह वो रेजोल्यूशंस पास कर सकते थे या फिर डिस्कशन कर सकते थे इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर, जो पहले उनको इजाज़त नहीं थी। तो ये देखें, कुड डिस्कस बजट एंड अदर मैटर्स, कुड पास रेजोल्यूशंस, बट these all resolutions were non-binding. All powers were still in British hands. Councils were just talking shops. आपने बस इतनी बातें मौले-मंटो रिफॉर्म्स के लिए याद रखनी है जो 1909 में आई। अब हमने कितने इवेंट्स पढ़ लिए इस सेशन के? नंबर 1, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके रिएक्शन में फिर कांग्रेस ने बाइकॉट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो मुस्लिम्स ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को बचाने के लिए और अपनी डिफरेंट दूसरी डिमांड्स को प्रेजेंट करने के लिए शिमला डेपुटेशन किया। शिमला डेपुटेशन इतना सक्सेसफुल हुआ कि उन्होंने सोचा कि अपनी मुस्लिम लीग एक पार्टी होनी चाहिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। और फिर उसके बाद स्ट्रगल स्टार्ट हुई अपने ना सिर्फ जो राइट्स मान लिए गए उनको प्रोटेक्ट करने की, बल्कि और ज़्यादा राइट्स मुसलमानों के लिए लेने के लिए। तो फिर 1909 इंडिया एक्ट हुआ, और इंडिया एक्ट में वाकई सेपरेट इलेक्टोरेट को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया